رات کا وقت تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ نیند ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ At one point, an official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. 3 دسمبر 1984 کی وہ رات جب ایک نہ نظر آنے والی موت بھوپال کے آسمان میں تحلیل ہو رہی تھی۔ بھوپال جو کہ ہندوستان کی مدھیہ پردیش ریاست کا دارالحکومت ہے، اپنی خوبصورتی، جھیلوں اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اسی شہر میں ایک ہولناک سانحہ رونما ہونے والا تھا۔ اس وقت بھوپال شہر کی کل آبادی 8 لاکھ سے زیادہ تھی، اور یہ آبادی آنے والی نسلوں کے لیے بھیانک یاد چھوڑنے والی تھی۔ یونین کاربائڈ انڈیا لمیٹڈ، جسے UCIL کہا جاتا تھا، ایک کیمیکل پلانٹ تھا جسے انڈیا کی ترقی اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور یہ اس وقت کا ٹک ٹک کرتا بم ثابت ہوا۔ اس پلانٹ میں میتھائل آئسوسائنائٹ MIC نامی ایک انتہائی زہریلی گیس ذخیرہ کی جا رہی تھی۔ اس فیکٹری کے قریب 1.5 لاکھ کی آبادی بھی رہتی تھی، جو کہ فیکٹری انتظامیہ اور بھارتی حکومت کی بہت بڑی نااہلی تھی، کیونکہ پوری دنیا میں فیکٹری ایریاز کو عموماً شہری آبادی سے کافی فاصلے پر رکھا جاتا ہے۔ 3 دسمبر کی رات قریب 12 بجے کا وقت تھا۔ ورکرز معمول کے مطابق فیکٹری میں اپنا کام کر رہے تھے کہ اچانک کچھ ورکرز نے آنکھوں میں جلن کی شکایت کی۔ انہیں لگا کہ کہیں سے کوئی گیس لیک ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے پلانٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ یہ گیس آخر کہاں سے لیک ہو رہی ہے۔ ایک ورکر کی نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک جگہ سے لیکورڈ لیک ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک پیلے رنگ کی گیس بھی نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بھاگا دوڑا اپنے سپروائزر کے پاس گیا اور معاملہ بتایا، مگر اس نے کہا کچھ نہیں ہے، وہ بس عام پانی ہے اور کچھ نہیں۔ ایسے چھوٹے موٹے لیکس اتنے بڑے پلانٹ میں ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مگر سپروائزر نے کہا اسے چیک ضرور کریں گے، مگر ٹی بریک کے بعد۔ اور یوں 3 دسمبر 1984 کی رات تقریباً 11 بجے ایک وال میں لیکیج ہوئی، جس کے نتیجے میں پانی MIC ٹینک میں چلا گیا، اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی خوفناک تھا۔ پانی اور MIC کے ملاپ سے ایک زبردست کیمیکل ری ایکشن شروع ہو گیا، شدید گرمی پیدا ہوئی، اور چند ہی لمحوں میں ہزاروں ٹن زہریلی گیس فضا میں پھیلنے لگی۔ پلانٹ میں کام کرنے والے ملازمین اور ٹی بریک لینے والے سپروائزر نے خطرے کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور اگلے 2 گھنٹوں میں یہ گیس پورے بھوپال شہر میں پھیل گئی اور ہزاروں لوگوں کی موت کی وجہ بنی۔ رات 12:30 پر بھوپال کے شہریوں کو اپنی سانسوں میں جلن محسوس ہونے لگی۔ لوگوں کی آنکھیں جلنے لگیں، سانس لینا دشوار ہو گیا، کچھ کو متلی محسوس ہونے لگی، کچھ بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے باہر بھاگے، لیکن جس سمت بھاگتے وہیں زہریلی گیس تھی۔ کچھ لوگ دوڑتے دوڑتے گر گئے، کچھ اپنے گھروں میں ہی دم توڑ گئے۔ یہ قیامت کی گھڑی تھی۔ سڑکوں پر لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن ان کے ننھے جسم زندگی کی ڈور کھو چکے تھے۔ کچھ لوگ اس کو نیوکلیئر ڈیزاسٹر بھی کہتے ہیں، مگر یہ نیوکلیئر نہیں بلکہ ایک انڈسٹریل ڈیزاسٹر تھا۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو بھوپال کی گلیوں میں موت کا راج تھا۔ اسپتال مریضوں سے بھر چکے تھے، ڈاکٹرز بے بسی سے حالات کا سامنا کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ راستے میں دم توڑ چکے تھے، جبکہ کچھ اسپتال پہنچ کر جان کی بازی ہار گئے۔
तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर्स हैरानो परेशान थे और इस जहरीली गैस के असरात को पूरी तरह समझने से कासिर थे, और इस सब का उनके पास कोई इलाज मौजूद नहीं था। आंखों में जलन, फेफड़ों में तकलीफ, जल्द पर जख्म और अंदरूनी आज़ा की तबाही। सड़कें न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों की लाशों से भी भरी पड़ी थीं। ये सब इस गैस के हौलनाक असरात थे। तकरीबन 15,000 से जायद लोग इस हादसे में जान की बाजी हार गए, मगर कुछ सोर्सेज के बकौल इस वाक़े की वजह से 30,000 से जायद अफराद की मौत वाक़ई हुई। 5 लाख से ज्यादा अफराद जहरीली गैस के असरात का शिकार हुए। हजारों लोग आंखों की बिनाई खो बैठे, कई माजूर हो गए। इस वक्त के मीडिया ने इसे दुनिया की बदतरीन और खतरनाक सनती तबाही करार दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस तबाही के पीछे आखिर गलती किसकी थी? क्या गलती वर्कर्स की थी, या फिर इस कंपनी की जिसका ये प्लांट था, या फिर हुकूमत इसकी जिम्मेदार थी? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात आज 2025 तक भी इंडिया की आवाम को नहीं मिल सके। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL केमिकल प्लांट, जो कि तकरीबन 100 साल पुराना है, ये न सिर्फ बैटरी पेस्टिसाइड बल्कि रॉकेट फ्यूल भी बनाने के माहिर समझे जाते हैं। दुनिया में कई मुख्तलिफ ममालिक में इनके प्लांट हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। 1994, 1994 में इसका नाम तब्दील कर दिया गया और इसको एवरेडी इंडस्ट्री का नाम दिया गया। 1969, 1969 वो साल था जब इस कंपनी ने भोपाल में अपना एक प्लांट लॉन्च किया और इसमें इंसेक्टिसाइड बनाना शुरू किया जिसका नाम सेवन था, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइट नामी खतरनाक केमिकल से बनाई जाती थी, और इसको भारत मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट करके लाया जाता था सेवन को बनाने के लिए। अब साल 1980 इस कहानी में बहुत अहम है, क्योंकि इस साल UCIL को बड़ा नुकसान होना शुरू हो गया, तो कंपनी ने फैसला किया कि क्यों ना MIC को इंपोर्ट करने की बजाय इसे भारत में ही बनाया जाए। ये एक इंतहाई खतरनाक इक़दाम था, मगर भारतीय हुकूमत ने फिर भी इसकी इजाज़त दे दी। मगर साथ ही साथ कंपनी को सेफ एग्जिट प्लान तैयार करने का भी कहा गया कि अगर कभी गैस लीक हो तो आवाम को ये भी मालूम हो कि उसने जान कैसे बचानी है और कहां को भागना है। मगर ये प्लान कंपनी ने तो कभी बनाया ही नहीं। कंपनी मुसलसल नुकसान में जा रही थी, सेवन की सेल भी तेजी से गिरती जा रही थी। कंपनी ने अखराजात में कमी शुरू की और कई वर्कर्स को फारिग कर दिया, और जो मुलाजमीन रखे वो भी ज्यादातर अनक्वालिफाइड वर्कर्स थे जिनको कम तनख्वाह देना पड़ती थी। सबसे अहम चीज ये थी कि कंपनी ने हिफाजती अखराजात में कमी करते हुए जरूरी इकदामात को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मगर यहाँ आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने इस सूरत हाल पर गौर नहीं किया? इस फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स मोहम्मद अशरफ की गैस के असर से मौत हो गई, मगर मरने से पहले वो एक बड़ा काम कर गए। मोहम्मद अशरफ इन चंद लोगों में से थे जो इस खतरे से बखूबी वाकिफ थे। उन्हें मालूम था कि हिफाजती मामलात को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है और ये लापरवाही किसी दिन एक भयानक तबाही को जन्म दे सकती है। मोहम्मद अशरफ ने कई बार अपने आला अफसरान को इन कमजोरियों के बारे में आगाह करने की कोशिश की, मगर हमेशा उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता। मौत से कुछ दिन कबल मोहम्मद अशरफ ने अपने करीबी दोस्त राजकुमार किशवानी, जो कि एक सहाफी थे, उनको फैक्ट्री के हालात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि किसी तरह हिफाजती इकदामात महज एक दिखावा हैं और कंपनी के मालिकान लागत कम करने के चक्कर में हजारों जानों को खतरे में डाल रहे हैं। राजकुमार किशवानी इस काम में जुड़ गए और इसकी तहकीक शुरू कर दी। बहुत सी रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया और इन मालूमात की बुनियाद पर खबरदार करने की कोशिश की और एक तफसीली रिपोर्ट लिखी। इसके अलावा अखबारात में मज़ामीन भी लिखे और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आला को भी ये रिपोर्ट भेजी, मगर कोई जवाब नहीं आया।
फिर दिन आता है 2 दिसंबर 1984 का। रात 9 बजे का वक्त था और वर्कर्स मामूल का काम कर रहे थे। MIC गैस के टैंक की पाइपों की धुलाई का काम चल रहा था, मगर पाइपों में पानी डाला तो देखा कि दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा। उन्होंने कुछ फिल्टर्स को साफ किया, ये सोचकर कि शायद पानी कहीं रुक रहा है या शायद कोई ब्लॉकेज है, मगर जब दोबारा पानी डाला गया तब भी पानी बाहर नहीं आया। मगर उन्होंने इस पर ज्यादा तवज्जो ना दी और रात 11 बजे उन्होंने अपने सुपरवाइजर को जाकर बताया कि ये मसला आ रहा है। उसने कहा पानी को चलने दो, जो अगली शिफ्ट पर वर्कर्स आएंगे वो इसको बंद कर देंगे। मगर अब वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। यहाँ आपको बताते चलें कि MIC को मुख्तलिफ टैंक्स में रखा जाता है, इसलिए क्योंकि MIC अगर पानी से मिल जाए तो एक ऐसा रिएक्शन होता है जो जानलेवा गैसेस बनाता है। इसी तरह से इस गैस को हवा से भी दूर रखा जाता है, क्योंकि हवा में भी मॉइस्चराइजर होता है। मगर इस प्लांट में जिन पाइपों की धुलाई का काम हो रहा था और इसका पानी दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ रहा था, इस टैंक का नाम E610 था और ये टैंक MIC गैस से भरा हुआ था। अब जो सुपरवाइजर्स और वर्कर्स के लिए एक मामूली सी बात थी, वो अनकरीब कयामत ढाने वाली थी। अब MIC पानी से मिलना शुरू हो गई और रिएक्शन शुरू हो गया और तकरीबन 15,000 मासूम लोग जान की बाजी हार गए। हादसे के बाद जब तहकीकात हुई तो पता चला कि हिफाजती इकदामात इंतहाई नाकिस थे। गैस लीकेज का वार्निंग सिस्टम ही ना जाने कब से खराब पड़ा हुआ था। प्लांट की मेंटेनेंस ना होने के बराबर थी। यूनियन कार्बाइड की इंतजामिया ने लागत बचाने के लिए कई हिफाजती सिस्टम्स को गैर फाल कर रखा था। कंपनी के CEO वॉरेन एंडरसन इस वक्त हिंदुस्तान आए, लेकिन जल्द ही मुल्क छोड़कर फरार हो गए। उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन वो कभी इंसाफ के कटहरे में खड़े ना हो सके। कहा जाता है कि उनको मुल्क से भगाने में राजीव गांधी का अहम किरदार था। हादसे के 40 साल बाद भी भोपाल के बहुत से इलाके आलूदा हैं। आज भी मुतासरीन की नई नस्ल खतरनाक बीमारियों के साथ पैदा हो रही है। जिन बच्चों ने ये जहरीली गैस अपनी माँ के पेट में महसूस की, वो या तो माजूर पैदा हुए या फिर शदीद जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हैं। माएँ आज भी अपनी बर्बाद जिंदगियों का मातम करती हैं और वो सड़कें जहाँ कभी खुशियाँ बिखरी रहती थीं, आज खामोशी और उदासी का शिकार हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि इस सब में राजीव गांधी पर भी इल्जाम लगता रहा है कि CEO वॉरेन एंडरसन को मुल्क से भगाने में उनका किरदार रहा है। मगर ये सब वही था जो हमेशा से बाअसर शख्सियात के साथ होता आया है। बात सिर्फ बयानात और इल्जामात की हद तक रही और इसे आखिरकार दुबा दिया गया। 1989 में यूनियन कार्बाइड ने सिर्फ $470 मिलियन का हर्जाना दिया, जो कि मुतासरीन के लिए निहायत मामूली रकम थी। 2006 में एक हुकूमती रिपोर्ट में कहा गया कि गैस लीकेज के बायस जख्मी होने वालों की तादाद 5,58,125 थी, जिनमें 38,478 को मामूली जख्म थे और तकरीबन 3900 अफराद शदीद और मुस्तकिल तौर पर माजूर हुए। 2008 में मध्य प्रदेश की हुकूमत ने गैस के इखराज में हलाक होने वाले 3,787 मुतासरीन के लवाहिकीन और 5,74,366 जख्मियों को मुआवजा अदा किया। इसी तरह 2010 में हिंदुस्तान की अदालत ने चंद मकामी अफसरान को मामूली सजाएं सुनाई, लेकिन असल जिम्मेदारान आज भी आज़ाद हैं। वो कंपनियां जो अपनी मसनूआत के जरिए अरबों डॉलर कमाती हैं, वो इंसानी जानों की कीमत को निहायत मामूली समझती हैं। भोपाल के लोग आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं, लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। भारत एक ऐसा मुल्क है जो अपने जौहरी हथियारों पर फख्र करता है, आलमी ताकत बनने के ख्वाब देखता है, मगर अपनी ही सरजमीन पर होने वाली सनती हादसात और ख़तरनाक मवाद को संभालने में नाकाम रहा है। भोपाल गैस सान्या इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि किस तरह एक मुल्क जो जौहरी हथियारों का मालिक है, अपनी ही आवाम की जिंदगियों को महफूज रखने में नाकाम हो चुका है। अगर एक केमिकल प्लांट की मामूली हिफाजती कोताही हजारों जिंदगियां ले सकती है, तो क्या भारत के एटमी असासे किसी बड़े हादसे का पेश खैमा नहीं बन सकते? ये सवाल आज भी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए आलमी बरादरी ने पहले ही दिन
इंडिया पर इसके एटमी प्रोग्राम की वजह से पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थीं। भोपाल गैस सानेहा दुनिया की बदतरीन सनती आफात में शुमार किया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि जब भी इंसानी जिंदगी पर मुनाफे को फौकियत दी जाती है तो लोगों की हैसियत वही होती है जो इस हादसे के बाद सड़कों पर पड़ी हुई लाशों की थी। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये उन लोगों की चीखों पुकार है जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हुकूमतों, कंपनियों और अवाम को मिलकर ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए काम करना होगा, वरना तारीख खुद को दोहराएगी और हम सिर्फ तमाशाई बने रह जाएंगे। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि किसी भी राय की सूरत में पहले वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, उसके बाद कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल पर इस तरह की बहुत सी मालूमाती वीडियोस मौजूद हैं। ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन पे क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं।